प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 अगस्त से 22 अगस्त तक रहेगा। ये यात्रा द्विपक्षीय and prominent Indologists. He will also visit memorials that commemorate the very special episodes of Jamnagar and Kolhapur in our shared history, which I just spoke about. This historic visit in this landmark year for India and Polish relations will provide an opportunity for our leaders to review the bilateral partnership and offer guidance on enhancing this cooperation in diverse areas and also discuss regional and global issues of mutual. Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine. The Minister of India is visiting Poland after 45 years. The visit takes place as we also mark the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations between India and Poland. Prime Minister Modi had met Prime Minister Tusk on 4 occasions in the latter's earlier capacity as the President of the European Council. Prime Minister Modi had also held a telephone conversation with President His Excellency Andrzej Duda in 2022. Prime Minister Tusk had visited India in 2010. This upcoming visit builds upon a series of continuing high-level exchanges between India. प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक अहम पड़ाव पोलैंड में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करना है। पोलैंड में भारतीय समुदाय के 25,000 लोग रहते हैं। इनमें लगभग 5,000 छात्र हैं। If we look at the institutional mechanisms for economic cooperation, then there is a joint committee on economic cooperation, JCEC, which met in Warsaw in 2022 for its 6th session. And a big Indian business delegation had also visited Poland during that year. Now, all these interactions provide a glimpse of the range and the scope of our engagement with Poland, which is an important partner for India in Central Europe. Poland has the 6th largest economy within the European Union, and Poland will hold the next presidency of the Council of the European Union. Poland is currently the chair for the Visegrad Group. Our bilateral trade is substantial, and this makes it's of the order of $6 billion, which makes Poland India's largest trading partner in Central and Eastern Europe. Indian investments into Poland are estimated at around $3 billion, and the Polish investments into India are around $1 billion. A number of Indian companies have active business presence in Poland, and they are engaged in a range of sectors, from IT to pharmaceuticals to manufacturing to farm vehicles to electronics, steel, metals and chemicals. वाला है, इसलिए राजनीतिक पहलू भी पोलैंड यूरोपियन यूनियन में जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोलैंड मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। पोलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत अच्छा है और लगातार बढ़ रहा है। भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए। 1957 में वार्सा में भारतीय दूतावास और 1954 में नई दिल्ली में पोलिश दूतावास खोला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 और 1948 के बीच 6,000 से ज्यादा पोलिश महिलाओं और बच्चों को भारत की 2 रियासतों जामनगर और कोल्हापुर में शरण मिली। नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने अपने राज्य में 1,000 से ज्यादा पोलिश बच्चों को शरण दी है। कई अन्य बच्चों को कोल्हापुर के एक बड़े शिविर में शरण मिली।
दोनों देशों के बीच मानवता के लिए किए गए इस काम को लेकर भारत और पोलैंड के बीच एक मार्मिक संबंध के रूप में याद किया जाता है। One of the unique bonds between our countries relates to the time in 1940s during World War II, when more than 6,000 Polish women and children found refuge in two princely states in India, Jamnagar and Kolhapur. As you may be aware, Jam Sahib of Navanagar had provided shelter to more than 1,000 Polish children, and others were offered refuge in Kolhapur. There are long-standing cultural ties between India and Poland, and Indology studies in Poland, Polish universities date back to 19th century. There is respect and appreciation in Poland for Indian culture and spiritual ethos, including yoga and Ayurveda. भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क और जीवंत आर्थिक जुड़ाव की विशेषता रखते हैं। द्विपक्षीय संबंध व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों से और मजबूत होती है। भारत की तरफ से पोलैंड की उच्च स्तरीय यात्राओं में 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड का दौरा किया था। भारत के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2009 में पोलैंड का दौरा किया, जबकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सितंबर 2010 में भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 32 वर्षों के अंतराल के बाद 28-29 अगस्त 2019 को पोलैंड का दौरा किया। विदेश मंत्री द्वारा पोलैंड की पिछली यात्रा 1987 में हुई थी। दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार बना हुआ है। पोलैंड भारत व्यापार संतुलित है और पिछले दशक में व्यापार की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। पोलैंड में मौजूद कुछ भारतीय कंपनियों में आर्सेलर मित्तल, वीडियोकॉन, एस्कॉर्ट्स, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब, रेनबैक्सी, एसएल प्रोपैक, केपीआईटी कमिंग्स, जिनसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन्फोसिस, विप्रो, जिंदल स्टेनलेस, बर्जर पेंट्स और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। भारत में मौजूद कुछ पॉलिश कंपनियों में डिंडीगुल, बंगलुरु में टोरेंस्की, जांकलांडी, मटेरियलोव, ओपांग कुंकोविच, औरंगाबाद में कैनपैक पोलैंड, जियोफिजिका, टोरो, फार्मर ग्रुप और इकोलॉग शामिल है। पोलैंड बुनियादी ढांचे, खनन, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन, कपड़ा, इंजीनियरिंग और कृषि खाद्य प्रसंस्करण में द्विपक्षीय सहयोग के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। ये स्टार्टअप खासकर तकनीकी केंद्रों में सहयोग के अवसर भी खोलता है। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी से छात्र और संकाय के आदान प्रदान, संयुक्त डिग्री, सहयोगात्मक अनुसंधान, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को अपने कुशल विकास कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और सांस्कृतिक सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। पोलैंड में इंडोलॉजी अध्ययन की एक मजबूत परंपरा है, जहां पोलिश विद्वानों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही संस्कृत का पोलिश भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया था। 1860-61 में क्राको में 600 साल पुराने जगीयेलोनियन विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया जा रहा है। 1893 में संस्कृत की एक चेयर स्थापित की गई थी। वारसा विश्वविद्यालय में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी विभाग मध्य यूरोप में भारतीय अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र है। भारतीय भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और इंडोलॉजी का अध्ययन पोज़नान में एडम मिक्कीविक्स विश्वविद्यालय और पोलैंड में व्रोक्ला विश्वविद्यालय में भी किया जाता है। जगीयेलोनियन विश्वविद्यालय कार्को में भारतीय अध्ययन के ICCR चेयर की स्थापना के लिए ICCR और जगीयेलोनियन विश्वविद्यालय के बीच फरवरी 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और बाद में 2020 और 23 में 2 बार नवीनीकृत किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद से 2 भारतीय प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के ICCR चेयर प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। पोलैंड को समकालीन भारतीय साहित्य और रंगमंच में काफी रुचि है। आयुर्वेद, योग और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को
पोलैंड में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और उनका अभ्यास भी किया जा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जिसमें ब्रसेल्स मार्च 2016 और नई दिल्ली अक्टूबर 2017 में यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन, साथ ही अंताल्या नवंबर 2015 और ब्यूनस आयर्स दिसंबर 2018 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात शामिल है। भारत और पोलैंड के बीच राजनीतिक संबंध हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं, खासतौर से 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से, जब ये मध्य यूरोप में भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन गया।